Praise the Lord and welcome once again to our another service. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से एक और सभा में आपका स्वागत है। I trust God has been good to all of us. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सभी के प्रति भला है। And you've been worshiping and praising God through the week. और विगत सप्ताह भर हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति में पाए जा रहे हैं। Shall we join in and worship God for some time? आइए प्रभु की आराधना में कुछ गीतों के द्वारा हम शामिल हो जाएं। And then we go into the Word. उसके बाद हम वचन में जाएंगे। It's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. No folks can understand it, how can I keep it quiet? It's bubbling, 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 bubbling day and night. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, I'm dancing, since Jesus made me whole. No folks can understand it, how can I keep it quiet? It's bubbling, 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 bubbling day and night. वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके चलके 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 दिन और रात, वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चलके 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 दिन और रात। Hallelujah. हालेलुया। It's bubbling in my soul. ओ मेरे प्राण में वो छलकता है। Amen. Sing it one more time. Put your hands एक बार together. फिर से ताली बजाकर गाएं। वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके चलके 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 दिन और रात, वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या न समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चलके 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 दिन और रात। Amen. आमीन। That's what happens at the day of salvation. उद्धार के दिन ऐसा ही होता है प्रियो। Amen. All the Amen. burdens of our heart just roll away. हमारे हृदय के सारे बोझ वो लुढ़क कर चले जाते हैं। And our heart is filled with the joy of the Lord. और हमारा हृदय परमेश्वर के आनंद से भर जाता है। And this songwriter says, no folks can understand. और गीत का लेखक बोलता है कोई उसको समझ नहीं सकता। Or we could have said, some folks may not understand it. और जैसे हम कहते कुछ लोग शायद उसको ना समझ पाए। Those who have not known Jesus will not understand. जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाने, शायद वो समझ ना पाए। But the man who experienced it, लेकिन जिसने यीशु को अनुभव किया अपने जीवन में, hallelujah. हालेलुया। Greatest thing in our life is to serve Him. और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज उस प्रभु की महिमा, And उसकी सेवा करना and to है love Him. और उसे प्यार करना है। Hallelujah. हालेलुया। I live for Jesus मैं यीशु के लिए जीऊंगा, एक गीत बोलता day है after day. हर दिन ब दिन। I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Let come what may. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. I'll walk with Jesus day after day. I'll walk with Jesus
let come what may. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. I'll sing for Jesus day after day. I'll sing for Jesus, let come what may. The Holy Spirit I will obey. I'll sing for Jesus day after day. You know, when we love Him and we serve Him, आप जानते जब हम उस प्रभु से प्रेम करते और उसकी सेवा करते हैं, we know the focus in our life is not material things. हम जानते हमारे जीवन का मुख्य केंद्र कोई भौतिक चीज नहीं रह जाती है. You are finding in these days that people are feeling lonely. और हम इन दिनों में यह समाचार देख रहे, लोग अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं. But when you walk with Him, लेकिन जो कोई Hallelujah. यीशु मसीह के संग चलता है, Amen. Amen. He's never be lonely again. वो कभी भी अकेला नहीं होता है, He's the best friend you can ever have. क्योंकि यीशु मसीह सबसे उत्तम दोस्त है जो आप पा सकते हैं. Amen. Amen. So say to Him, उससे बोलिए, I live for you, Lord Jesus. प्रभु मैं तेरे लिए जी रहा हूँ. Amen. Amen. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, let come what may. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Shall we sing one Hindi song? एक हिंदी के गीत को हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे. आवाज उठाएंगे. उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही. इन चांद सितारों में ये अश्क तो तेरा ही. संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही. इन चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही. महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे. आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर
सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Hallelujah, hallelujah. We sing one more song. एक और गीत को हम गाएंगे। It's a very, very old English chorus we used to sing. एक छोटा सा कोरस है, इंग्लिश में बहुत पहले हम गाया करते थे। In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. और एक गीत कहता है, ऐसे समयों में मैं गीत गाता हूँ, एक प्यार भरा गीत प्रभु यीशु के लिए। When His presence fills this place. और जब उसकी उपस्थिति स्थान को भर देती है, Those are the moments वही समय, वो क्षण होते हैं we can lift up our hands जब हम अपने हाथों को उठा कर बोलते and sing a love song to Jesus. और यीशु के लिए गीत को गाने लगते हैं। Amen. आमेन। In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Does everybody sing? Moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love
how long has it been when we have said to Jesus that we love him? कितना समय बीत गया है प्रियो जब हम यीशु से कहें प्रभु यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। You know, Jesus wants to know that आप जानते यीशु मसीह भी इस बात को जानना चाहता है, because he asked Simon Peter, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेले शमौन पतरस से पूछा, do you love me more than these? पतरस क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? And Jesus told Simon, और यीशु मसीह ने शमौन जो फरीसी था उससे कहा था, I came to your house. मैं तेरे घर आया, You gave me no kiss. तूने मुझको चुंबन नहीं दिया। And all this is showing us that God wants a response of our love. ये सारी बातें हमको ये बताती कि परमेश्वर भी हमारे प्रेम को चाहता है। Amen. आमेन। So sing it one more time. एक बार फिर से गाएं, This time with all your heart say, इस बार अपने सारे हृदय के साथ में गाएं। whatever my pain, whatever my distress, whatever condition I go through, मेरा दर्द चाहे कुछ भी हो, मेरी निराशा जिस परिस्थिति से भी मैं गुजर रहा हूँ, your presence is enough. प्रभु तेरा उपस्थिति मेरे लिए काफी है। For that I will always say, और इसलिए मैं हमेशा तुझसे कहूंगा, I love you, Lord. प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Amen. In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Sing it again. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Sing it again. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Lord, we want to say, प्रभु हम तुझसे कहना चाहते हैं, though our love is weak, यद्यपि प्रभु हमारा प्यार तो कमजोर है, still we want to say that we love you. तो भी प्रभु हम तुझसे प्यार करते, हम बोलना चाहते हैं, You died for us, प्रभु तूने हमारे लिए अपनी जान को दिया है, shed your blood. तूने अपने खून को बहाया है। What more could you give? प्रभु और कितना तू हमको दे सकता था, प्रभु You gave it all. तूने सब कुछ दे दिया है। We surrender our lives into your hand. आज अपने जीवन को हम तेरे सामने समर्पण करते हैं। Spirit of the living God, जीवित परमेश्वर की आत्मा, take control. तू हमारे जीवन पे नियंत्रण ले ले। Every heart be blessed, हर एक हृदय आज धन्य होने पाए, not because they are on this program, इसलिए नहीं कि प्रभु वो इस कार्यक्रम में है, it's because of your presence that fills that place. परंतु इसलिए कि तेरी हुजूरी इन स्थानों को भर देती है। Your presence तेरी हुजूरी is all that we need in this life. इस जीवन में हमें केवल वही चाहिए प्रभु। We will say like Moses said, हम मूसा के समान बोलेंगे, if your presence will not go with us, do not take us hence. प्रभु यदि तेरी उपस्थिति हमारे संग आगे को नहीं चलेगी तो हमको आगे मत ले जा। May your presence
Heal the sick person who is watching right now. तेरी उपस्थिति उस बीमार जन को चंगा कर दे जो इस समय इसे देख रहा है। All the distress and pain from that body. सारी निराशा और दर्द उस शरीर में से निकल In जाए। the mighty name of Jesus of Nazareth. यीशु नासरी के सामर्थी नाम में Go away from that body right now. उस शरीर से इसी समय निकल जा। Jesus Christ makes you whole. यीशु मसीह तुझको चंगा करता है That cancer और कैंसिल कर देता है। and all that cancer and that disease that is eating your body. और वो कैंसर बीमारी या जो बीमारी उस शरीर को खा रही है Will bow its knees to the name of Christ, the Lord of Lords and King of Kings. अपने घुटने को टेक दे उस प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा के सामने। Be healed in Jesus' name. तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। The fire of God be upon you. परमेश्वर की आग इसी समय तुझ पर हो। That warmth upon the fire of the Spirit is upon your body. पवित्र आत्मा की गर्माहट इसी समय तेरे शरीर के अंदर प्रवेश करे। Repairing and replacing things in your life. तेरे शरीर में उन चीजों को जो बिगड़ गई दुरुस्त कर दे। Dissolving those things that are not needed there. उन चीजों को खोल दे, हटा दे जो तेरे शरीर में आ गई है। Jesus' name. यीशु के नाम में, Jesus Christ यीशु मसीह के नाम में makes you whole. यीशु तुझको चंगा करता है। Bless them, O God. प्रभु तेरे लोगों को आशीष दे। Bless your word. तेरे वचन के द्वारा आशीष दे। Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। We have been trying to understand the person and the ministry of the Holy Spirit. विगत दिनों से हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व और उनके कार्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। So we talked about the person of the Holy Spirit, और हमने इस बात की चर्चा की पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में, the work of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में, the seal of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की मुहर के बारे में, and also the baptism of the Holy Spirit. और साथ में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में भी। And a little bit we touched upon the blasphemy against the Holy Spirit. What is blasphemy of the Holy Spirit? बीते सप्ताह को हमने थोड़ा सा देखा था पवित्र आत्मा की निंदा किस बात को हम कहते हैं, वो क्या चीज़ है। And you find much of it in 1 Corinthians 12 chapter and 14 chapter. और इनमें से आप पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 14 अध्याय में उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। This understanding was very clear in those days to the Christians, believers. पवित्र आत्मा के बारे में ये ज्ञान उन दिनों के विश्वासी लोगों और चेलों में बात बहुत स्पष्ट थी। And today we are going to see a little bit what it says about the gifts of the Holy Spirit. आज कुछ हम देखना चाहेंगे पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में और पवित्र आत्मा के दान के विषय में। A little bit from the 14th chapter and 12th chapter. और थोड़ा सा हम देखेंगे 12 अध्याय में से और थोड़ा उसके 14 अध्याय में से भी। And there are other ministerial gifts also. इसके अलावा दूसरे भी आत्मा के वरदान भी हैं बाइबल में, So that we might discuss afterwards. जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे। But the 12th chapter first verse says, लेकिन 12 अध्याय और उसकी पहली आयत क्या बोलती है? He says, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। Mind you, he's writing to a church of believers. ध्यान रखें, इसको लिखने वाला पौलुस विश्वासियों की कलीसिया को विश्वासियों को लिख रहा है, Where the gifts were in operation. जिस कलीसिया में आत्मा के वरदान क्रियान्वित हो रहे थे। So much so the operations there was a little bit of indiscipline also in the church. और इतना वरदानों का वहाँ पर कार्य हो रहा था कि कुछ वहाँ पर गैर अनुशासन के भी कार्य हो जा रहे थे। So people never knew when to come in, when to minister and what to do. और लोग नहीं जान पा रहे थे कि अपने दान को लेकर वो कैसे आएं, कैसे उसको नियंत्रित करें, वो नहीं समझ पा रहे थे। So Paul writing to them says, the spirit of the prophet is subject to the prophet. तो पौलुस इसलिए उनको लिखता है और बोलता है कि
भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ता के वश में होती है। Now we need to understand one thing. हम एक बात को यहाँ पर सीखना है There is a difference between the gift of the Spirit and gifts of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा का दान जो लिखा है और पवित्र आत्मा के वरदान ये अलग अलग चीजें हैं। So Peter preaching on the day of Pentecost said, पेंतिकुस्त के दिन में जब पतरस ने प्रचार किया तो उसने कहा, when the Holy Ghost fell upon the people, जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, उसने कहा, and he said to them, वो लोगों से यूं बोलता है, when those people asked him, men, brethren, what shall we do to be saved? कि सुनने वाले What shall लोग we do? जब पूछने लगे कि हे भाइयों, और हम, They were pricked in the heart. उन लोग अपने हृदय में छिद गए और वो पूछने लगे हम क्या करें। So Peter said, तब पतरस ने कहा, repent and be baptized, every one of you. पश्चाताप करो और तुम में से हर एक जन बपतिस्मा ले, You shall receive the gift of the Holy Spirit. तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Okay. Now, whenever a person receives the baptism of the Holy Spirit, जब कभी भी कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाता है, he receives the gift of God. वो परमेश्वर का दान पाता है। Jesus said, I will send you the promise of the Father upon you. यीशु मसीह ने भी कहा, मैं पिता के वायदे को भेजता हूं तुम्हारे पास। So, a gift is for himself. A man who receives the Holy Ghost, he begins to speak in tongues. और वरदान उस व्यक्ति के लिए है जो उस दान को पाता है, वो अन्य भाषा में बोलने भी लगता है। Okay? ठीक है। So, when Peter preached in Cornelius' house, कुरनेलियुस के घर में जब पतरस ने प्रचार किया, the Holy Ghost fell. पवित्र आत्मा वहां उतरा। Then again he gave an answer to the council and said, तब उसने वहां जो सभा थी उनको उसने कहा, these men have received a like gift we have received. कि इन लोगों ने, इन अन्य जातियों ने भी वैसे ही आत्मा का दान पाया जैसे हम लोगों ने पाया। So the gift of the Spirit, तो आत्मा का ये जो दान है, Bible says, बाइबल कहती, he who speaks in tongues जो अन्य भाषा में बात करता है speaks to God. परमेश्वर से बातें करता है, His own spirit is edified. और उसकी खुद की जो आत्मा है उन्नति करती है, It doesn't profit the other people. वो दूसरों को लाभान्वित नहीं करती। So we understand a little bit. हम थोड़ा सा इसे समझेंगे The gift charges you when we speak in tongues. कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो ये जो दान है ये हमको सरगर्म कर देता है। Mind you, we are not seeking for tongues. हम अन्य भाषा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, We are seeking the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं। When we receive the baptism of the Holy Spirit, और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिल जाता we है begin to speak in tongues. तो हम अन्य भाषा में उसके कारण बोलने लगते हैं। Okay, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, these signs shall follow them that believe. विश्वास करने वाले लोगों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। In my name they shall lay hands on the sick will recover, cast out demons in my name. क्या मेरे नाम से बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और बीमारों को चंगा करेंगे। The Holy Ghost came in to empower us. पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देने के लिए आया। First, पहली बात, to live like Christ. इसलिए सामर्थ्य कि हम यीशु मसीह के समान जी You सकें। shall be my witnesses. और वो कहता है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। And these signs will follow them. और विश्वास ये उनके पास चिन्ह पाए जाएंगे। These signs will not precede them, they will follow them. ये चिन्ह उनके पीछे पीछे आएंगे उन विश्वास करने वालों के। Meaning, मतलब even as they begin to live Christ-like life, जैसे ही वो यीशु मसीह के समान का जीवन जीने लगेंगे, these signs will automatically follow. ये चिन्ह आपे आप उनके संग संग काम करते जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So first he wants us to be witnesses. पहले बात, आत्मा ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम गवाह बने। Now the question comes in, अब एक सवाल हमारे सामने है what is this language also? कि ये जो भाषा, अन्य भाषा कौन सी भाषा है? One thing is for sure, एक बात तो तय है the man who speaks in tongues, he had not learned this language of anybody. कि जिस व्यक्ति ने अन्य भाषा में बात करता है वो किसी से उस भाषा को सीखा नहीं है। It's so unique. वो उसके लिए भी एक अलौकिक चीज है। Something you never learned, you're speaking. कोई ऐसी चीज जिसको आपने सीखा भी नहीं लेकिन आप बोल रहे हैं, And your speaking is absolutely clear और for आपका people to understand also. बोलना लोगों को सुनने वालों के लिए एकदम स्पष्ट भी है। Amen. आमेन। So it could be a language of the earth.
ये संभव है कि वो भाषा जो व्यक्ति बोल रहा है इसी दुनिया में पाए जाने वाली कोई भाषा है unknown to him, जो वो व्यक्ति बोलने वाला नहीं जानता, and या it might be an angelic language. वो कोई स्वर्गीय भाषा भी हो सकती है। So we get that reference from 1 Corinthians 13 chapter, first verse. और ये हमको बाइबल में मिलता है 1 कुरिन्थियों और उसके 13 अध्याय और उसकी पहली आयत में। Though I speak with tongues of men and of angels, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं and have not charity, और प्रेम ना रखूं, I become like a sounding brass and a tinkling cymbal. तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। Okay. ठीक है, So he's talking about two languages. यहाँ पर दो बोलियों के बारे में बोल रहा है, Tongues of men मनुष्यों की बोलियां or tongues of angels. या स्वर्गदूतों की बोलियां। Or one thing is there that he doesn't know it. एक बात वो ये है कि वो उसे नहीं जानता उन दोनों को। Okay. The gift is for a personal edification. वरदान किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत उन्नति के लिए होता The है। gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का जो दान है वो उसकी उन्नति के लिए होता है, But the gifts of the Spirit, लेकिन आत्मा के द्वारा जो वरदान मिलते हैं, the gift is given by Jesus. पवित्र आत्मा का दान यीशु मसीह हमको दान स्वरूप देता है, The gifts are given by the Holy Spirit. लेकिन वरदानों को पवित्र आत्मा हमको देता है। So that is for the edification of the body of Christ. और ये वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए होता है, It's not for personal use. वो किसी भी आदमी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। Okay. ठीक In है। 12th chapter 12 अध्याय में of 1 Corinthians, 1 कुरिन्थियों का we read from verse 4. उसकी चौथी आयत से यदि हम पढ़ें, Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। There are differences of administration, but the same Lord. और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। But there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब के सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। Okay, you'll find this reoccurring in 12th chapter and 14th chapter, that this is for the body of Christ. आप इस भाग को फिर से आप देखेंगे 12 में और 14 में, जहां पर वो मसीह की देह के विषय में लिखता है, उसकी He's उन्नति की। talking that the church has to be edified. और वो लिखता है कि मसीह की जो देह है उसको उन्नति पाना चाहिए। Sometimes people say the gift was in such operation, church divided. और कुछ लोग कहते हैं कि जब आत्मा का वरदान से लोग कार्य कर रहे थे तो कलीसिया विभाजित हो गई। Jesus will not break his church. यीशु मसीह कभी अपनी कलीसिया को विभाजित नहीं He करता। says, I will build my church. वो कहता मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Now, the source is the Spirit. अब जो इसका स्रोत है वो आत्मा है इन वरदानों का। So it says in 8th verse, 8वीं आयत में इसलिए वो बोलता to है, one is given the Spirit, a word of wisdom, by the Spirit, the word of wisdom, to another, word of knowledge, by the same Spirit. क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। To another, faith by the same Spirit. To another, the gifts of healing by the same Spirit. किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। To another, working of miracles. To another, prophesying. By another, to another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. To another, interpretation of tongues. But all these worketh that one and the same same Spirit, dividing every man severally as he will. फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। Okay. ठीक है। Now he's saying, you find the thing coming often, that to one is given by the same Spirit. आप पाएंगे बार बार लिखा है किसी को उसी आत्मा से, By the same Spirit. उसी आत्मा से बार बार लिखा है। So the Spirit knows which kind of gift will be
more easily used by so and so. और पवित्र आत्मा जानता है कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा वरदान कैसे ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा. Okay, ठीक है. so we must know हमें इस बात को जानना है again that this is not for our personal use. कि ये भी वरदान जो है वो हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है. He is the boss. Spirit of God is boss. परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही बॉस है. Amen. आमेन. And these are all spiritual things. और ये सब आत्मिक चीजें हैं. You have not learned it, आपने उसको सीखा नहीं है. and it will be revealed to you, revealed to us by the Spirit. और वो आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया जाता है. It's not through experience. अनुभव से हम इसको सीखते नहीं We हैं. might learn certain things through experience. हो though. सकता है अनुभव से भी कुछ चीजें हम सीख लें, But लेकिन at that moment, उस क्षण में the Spirit, the gift works. पवित्र आत्मा का वो वरदान कार्य करने लगता है. Amen. आमेन. So in this chapter, इस अध्याय में 9 gifts are mentioned, 9 किस्म के वरदान का उल्लेख है, but there are others also. लेकिन इसके अलावा दूसरे भी हैं. But किंतु we will try to understand them. हम समझने का प्रयास करेंगे. We will divide it into 3 categories हम उनको 3 वर्ग में उनको विभाजित कर लेंगे, so that we will not miss out. ताकि हम उसे चूके नहीं समझने के लिए. Okay? Number 1, पहला है, we can say the gifts, discerning gifts. पहला हम वर्ग बोल सकते हैं परखने वाली वरदान, Rather, या फिर it ऐसा will be बोले more clear ज्यादा स्पष्ट, if we say gifts of revelation. या फिर प्रकाशन वाले वरदान यदि हम कहें. Meaning a screen is there, जैसे कि सामने में एक पर्दा है and when the screen lifts up, और पर्दा हटता है there is revelation. और आपको एक नई चीज दिखती है. Meaning that person doesn't know it is done by the Holy Spirit. और ये व्यक्ति नहीं जानता खुद से, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा उसके लिए किया जाता है प्रकाशन. So this word revelation would be better than discerning ones. ये शब्द जो है प्रकाशन के वरदान ज्यादा उपयुक्त शब्द है परख वाले शब्द से. So each category has 3. तो हर एक के 3 वरदान हैं. So we will divide it to understand. हम उनको विभाजित करेंगे समझने के लिए. Okay? ठीक है. So in gifts of revelation, पवित्र आत्मा के जो वरदान प्रकाशन के लिए दिए जाते हैं उनमें से there are 3. 3 हैं. Word of knowledge, एक तो ज्ञान का वचन, word of wisdom, बुद्धि के वचन, discerning of spirits. और परख की आत्मा. Okay? All of them ये सब के सब, he's not learned the trick of the trade, this man. ये व्यक्ति ने ये जो ज्ञान या बुद्धि या परख पाया है ये सीखा नहीं है. It's not by craft, अब वो चालाकी से उसने हासिल नहीं किया है, it's by revelation. परंतु पवित्र आत्मा के प्रकाशन से उसको ये मिला है. Amen. We say gifts of revelation. जिसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं प्रकाशन के वरदान. Suddenly it operates. एकाएक उसके ऊपर प्रकट होता है. Amen. आमेन. You don't wait in the church watching somebody आप to किसी discern. को इंतजार करते नहीं रहते किसी को परखने का. No. नहीं. The Spirit tells you. आत्मा क्षण भर में आपको बता देता है. So gifts of revelation प्रकाशन के वरदान, has got 3. उसके अंतर्गत 3 वरदान हैं. Knowledge, ज्ञान का वचन, wisdom, बुद्धि के वचन and discerning of spirit. और आत्माओं की परख. Okay? ठीक है. Word of knowledge, और ज्ञान का जो वचन है, just an example. उदाहरण के रूप में मैं कहना Jesus चाहूंगा. talking to the woman at the well said, यीशु मसीह ने उस कुएं के पास बैठी सामरी स्त्री से कहा, go and call your husband. जा और अपने पति को बुला ला. I know you have 5. मुझको मालूम है तेरे 5 पति हैं. What a revelation. क्या प्रकाशन का वचन था वो. Amen. Amen. That did the job. और इसने इस कार्य को किया. Any work, कोई भी कार्य, any gift of the Spirit आत्मा का कोई भी वरदान will help a person to come out of darkness into light. वो किसी भी व्यक्ति को अंधकार से ज्योति में निकलने में मदद करता है. It will not push them into more confusion. उनको और गड़बड़ी में कभी नहीं डालता. The gifts were in operation, you don't know what happened. और आत्मा के वरदान क्रियान्वित हो रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता. No. नहीं. You have 5 husbands. आप यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा तेरे 5 पति है. That worked in her heart. और ये ज्ञान का जो वचन था उस स्त्री के हृदय में काम कर गया. You are a prophet. और वो कहने लगी
मुझे Hallelujah. जान पड़ता है तू भविष्य तकता है। Even what attitude we say? और किस आचरण के साथ हम उस बात को कहते Is it हैं? an attitude to save? क्या उसको बचाने का मंशा के साथ बोलते Every हैं? gift will be in operation to save. हर वरदान bless. लोगों की जान को बचाने के मकसद के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है, Not to become an offense. किसी और के लिए ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं, Not to put somebody down. किसी को नीचे दिखाने की कभी उसमें मंशा नहीं होती। Show yourself who you are अपने आप को दिखाने के लिए देखो कि मैं कौन हूं and who that person is. और वो व्यक्ति कौन है। No, friends. नहीं It's दोस्तों, not like that. बिल्कुल ऐसा नहीं है। That gift वो वरदान जो है, will change that person's life. वो बुद्धि का वचन उस व्यक्ति के जिंदगी को बदल देगा। Amen. आमेन। Peter said पतरस ने कहा to Ananias and Sapphira, हनन्याह और सफीरा से, why has Satan filled your heart to lie against the Holy Spirit? क्यों शैतान ने तुम्हारे मन में ये डाला कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? What knowledge? क्या ज्ञान के वचन पतरस No, प्रकट कर रहा था? not somebody never came and told him. किसी ने आकर पतरस को बताया नहीं था वहां पर। That is not gift. वो वरदान नहीं, यदि किसी ने कान में बताया That था is तो। manipulation. वो तो होशियारी से चीजों को बदलना है। Impress yourself before the people and the congregation. लोगों और सभा के सामने अपने आप को होशियार साबित करने का प्रयास। No, friends. नहीं दोस्तों, That doesn't work. वो काम नहीं करेगा। Amen. आमेन। Ananias and Sapphira हनन्याह और सफीरा lied against the Spirit. पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोल रहे थे, Satan had put something in their heart. और ये बात को उनके मन में शैतान ने डाली थी। Satan put something in Judas's heart also. शैतान ने कुछ बात यहूदा इस्करियोती के मन में भी डाली थी। Okay. Then the word of wisdom, उसके बाद आता है बुद्धि के वचन। supernatural impartation of wisdom. अलौकिक तरीके से बुद्धि के वचन दिए जाते That time, उसी समय के लिए। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, they came to test him with a coin and says, should we pay to tax to Caesar? और वे लोग भीड़ में आए और यीशु को एक सिक्का दिखा के पूछा, बता कैसर को कर देना उचित है या नहीं? Jesus said, show me the money. यीशु मसीह ने उनसे कहा, मुझको एक सिक्का दिखाओ। Render to whose inscription is on it? और उसने पूछा कि इसके ऊपर में किसकी चित्र बना हुआ है इस सिक्के में? They said Caesar's. उन्होंने कहा इसके ऊपर कैसर का चित्र है। Render unto Caesar what is Caesar's. यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, Give to God what is God. परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो। What wisdom. क्या बुद्धि का वचन। Hallelujah. आमेन। They got stumped. They thought they were going to catch him. और वो तो उसको पकड़ने के लिए आए थे बातों में, लेकिन वो धक्का खा गए। Stephen was filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरा हुआ था स्तिफनुस, And he spake by the wisdom of the Holy Ghost. और वो बुद्धि पवित्र आत्मा की बुद्धि से बोल रहा They था। could not resist the wisdom of Stephen. और लिखा है कि वे सुनने वाले लोग स्तिफनुस की बुद्धि का सामना नहीं कर पाए। Amen. आमेन। That's what the Spirit does. परमेश्वर की आत्मा ऐसे करती है। Books are all right. किताबें अच्छी चीज है दोस्तों, But the person who inspired that person to write the books, believe on him. ओ लेकिन जिस परमेश्वर ने उस आदमी को उस किताब को लिखने के लिए प्रेरित किया, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया। Then, और फिर the third one, तीसरा जो हम कहते हैं, discerning of spirits. आत्माओं की परख। Ability to discern what the spirit someone is operating under. और इस बात को परखने की ये सामर्थ्य कि कोई व्यक्ति कैसी आत्मा के अधीन में होकर कार्य कर रहा है। Amen. आमेन। There are so many examples we can give, but we don't have. हम बहुत से उदाहरण इसमें दे सकते हैं, लेकिन समय But को this ध्यान- gift we must have. ये वरदान हमें पाना चाहिए। Every believer has got little bit of enlightenment, more enlightenment in his spirit to discern between evil and good. हर एक विश्वासी के अंदर में एक अंश है, एक बुराई और अच्छाई को परखने की सामर्थ्य उसके अंदर होती है, Discerning of spirits. आत्माओं को परखने की सामर्थ्य। But this is a special gift. लेकिन ये एक विशेष वरदान है। Amen. आमेन।
If somebody is talking much good things about you, you think it is the Spirit of God. यदि कोई आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है और आप सोचते हैं कि परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। One girl used to come behind Peter, Paul and Silas. एक लड़की थी जो पौलुस और सिलास के पीछे पीछे आती थी बाजार में, And she used to say, और क्या बोला करती थी? these are servants of the Most High. ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवक लोग हैं, And they show you the way of salvation. जो तुम्हें उद्धार का मार्ग बताने के लिए यहाँ आए हैं। What was wrong in that? उसके कथन में क्या गलत था? If somebody would have said about us, यदि कोई बाजार में हमारे लिए ऐसा शब्द बोले, he would tell them, please come and give testimony in the church. तो हम शायद उस व्यक्ति को बोलेंगे, भैया आप चर्च आइए और एक बार गवाही जरूर दे दीजिए, You know, you must write one tract also. और तुम्हें एक ट्रैक्ट भी जरूर लिखना चाहिए। Discern what spirit is behind it. उसके पीछे कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, उसको परखने की Because सामर्थ, that spirit was not giving glory to God. क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर को कतई भी महिमा देने वाली आत्मा नहीं थी, He was exalting men. परंतु वो मनुष्यों को महिमा दे रही थी। And an evil spirit was in this girl. और एक दुष्टात्मा इस लड़की के अंदर समाया हुआ था, And Paul being grieved, और पौलुस उसकी बात को सुनकर दुखित हुआ, turned around and told the spirit to come out of her. उसने मुड़कर उस लड़की के अंदर जो आत्मा थी उससे कहा, निकल जा, Immediately it came out. और तुरंत ही वो आत्मा उस लड़की को छोड़ दी। Hallelujah. हालेलुया। And the business fell. और लेकिन उनका व्यापार जो उससे चल रहा था उस लड़की के माध्यम से बंद हो गया। They had to suffer for that. उस लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, And Peter and Paul and Silas also suffered. और पौलुस और सिलास को भी तकलीफ में पड़ना पड़ They were गया। put in jail. उनको वहां के लोगों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। Now listen, अब सुनिए, this is what God wants us to have. परमेश्वर ये चाहता है कि हम पाएं। Not everyone who says Lord, Lord shall inherit the kingdom of God. हर एक जन जो प्रभु प्रभु कहेगा वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, But he who does the will of the Father. परंतु वो व्यक्ति जो पिता की इच्छा पूरी करता है वही। Amen. आमेन। The second category. और दूसरा जो वर्ग है वरदानों में, Number one we said, पहला वर्ग हमने देखा gifts of revelation, प्रकाशन के वरदान, knowledge, जिसके अंतर्गत तीन है, पहला ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, and discerning of spirit. और तीसरा आत्माओं की परख। Second. अब दूसरा वर्ग, Second one is vocal gifts of inspiration. जिसको हम कहेंगे प्रेरणा के वरदानों को। Some people would say कुछ लोग ये कहेंगे utterance gift, कि प्रेरित वचन बोलने वाले, meaning gifts which are used by vocal cords. We speak it out. ऐसे वचन जिसको लोग शाब्दिक तौर से बोलते हों। Okay. ठीक है, So in gifts of inspiration तो ऐसे प्रेरणा वाले वरदानों के अंतर्गत, or gifts of utterances, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो बोलने वाले, घोषणा करने वाले जो वरदान है उसके अंतर्गत three of them come. तीन आते हैं। Prophecy, एक तो है भविष्यवाणी करना, speaking in different kinds of tongues, दूसरा है विभिन्न diversities of tongues, विभिन्न किस्म की भाषाओं में बोलना, and third, और तीसरा है interpretation of tongues. भाषाओं का अनुवाद। Okay. ठीक है, Now prophecy भविष्यवाणी can be forthtelling and foretelling. वो दो किस्म को हम बोलते हैं, एक तो किसी आने वाली घटना की भविष्यवाणी करना, या फिर किसी बात को परमेश्वर की ओर से घोषित करना। Most of the prophecies in the Old Testament were foretelling. बहुत सी जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में हम देखते हैं वो घोषित करने वाली रही है। There were times when they say foretell. और ऐसे भी समय रहे जब उन्होंने Thus says the Lord. ऐसा बोला कि परमेश्वर यूं कहता है कि ऐसा होगा, And you are the man. और तुम वो व्यक्ति हो। Like Nathan came and told David. और जैसे नातन नबी आया और उसने दाऊद से कहा, He was a prophet. नातन एक भविष्यवक्ता था। Okay. Foretelling and foretelling. एक होता है भविष्य की बात कहना और दूसरा है परमेश्वर की ओर से कुछ बात को बताना। And in the 14th chapter we read of foretelling prophecy. और Like 14 अध्याय में if somebody comes and unbeliever comes and people prophesy, he will know the Lord is here and he will bow down and 14 acknowledge अध्याय him. में हम कुरिन्थियों के जो पाते हैं वहां पर लिखा, जब तुम्हारे बीच में कोई व्यक्ति आ जाए और कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो तो तुम्हारे बीच में कोई व्यक्ति भविष्यवाणी कर दे तो व्यक्ति पर के भेद प्रकट हो जाएंगे और विश्वास कर लेगा।
Now, don't label yourself with that name. उस नाम से अपने आप को पहचान ना बनाएं। Others will know. दूसरे लोग आपके वरदान को देख के जान लेंगे। 2 ways. 2 तरीके हैं। You know it, आप खुद भी जानेंगे and the church recognizes it. और कलीसिया आपके अंदर ये वरदान है उसको पहचानेगी। You don't have to force the church to recognize you. आपको कलीसिया के ऊपर में को बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास ये वरदान है, Or you have to advertise yourself so much या इतना विज्ञापन भी नहीं करना पड़ेगा आपको that I am a prophet, I am a prophet, I am an apostle, I am an apostle. कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं प्रेरित हूँ। And then the congregation begins to say, you are a prophet, you are a prophet. फिर कलीसिया के लोग भी बोलने लगेंगे आप भविष्यद्वक्ता हो, आप प्रेरित हो, And you get so puffed up. और आप उसके कारण ऐसे फूल जाएं। If your not one prophecy has come straight, यदि आपकी एक भी भविष्यवाणी यदि सही नहीं हुई है, and you have not even been a blessing to the church as the body of Christ, और यदि आप मसीह की कलीसिया उसकी देह के लिए उन वरदानों के द्वारा आशीष के कारण नहीं हुए हैं, then that name doesn't matter at तो all. फिर वो नाम अपना रख लेना कोई मायने नहीं रखता। Amen. Be Amen. careful. उससे हम अपने आप को बचा कर रखें। If you are a good singer, यदि आप अच्छे गाने वाले हैं, I know we can't sing, but our voices are cracked. But if you are a good singer, people will say you are a good singer. यदि आप अच्छे गायक हैं, लोग आपको कहेंगे कि आप अच्छे गायक हैं, हमारी आवाज तो उतनी उत्तम नहीं है। You don't have to say it. आपको वो बताने की जरूरत नहीं होगी, They know. लोग सुनने वाले Church will जानेंगे। recognize. कलीसिया उस बात को पहचानेगी Which prophecy has come to pass and what prophecy you made? कि आपने कौन सी भविष्यवाणी की थी जो पूरी हुई है या नहीं हुई है, वो कलीसिया इस बात को जानेगी। Or just if somebody called you a prophet and you put a name there. या फिर किसी ने आपको ये कहा कि आप भविष्यद्वक्ता हो तो आपने अपना नाम भविष्यद्वक्ता रख लिया। Sometimes during ministry, an कभी-कभी। ordinary person who doesn't have the gift of prophecy can prophesy also. कभी कभी सेवकाई के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर में भविष्यवाणी की कोई वरदान नहीं है, लेकिन वो भी कभी खड़ा होकर भविष्यवाणी के वचन बोल सकता है। God might use you. परमेश्वर संभव है आपको वहां इस्तेमाल करे। Sometimes God has given us the word. कभी कभी परमेश्वर ने हमको भी ऐसे वचन दिए हैं, But that did not make us that become a prophet. लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि हमने भविष्यद्वक्ता का नाम हासिल कर The लिया। very proclamation of God's word, you are prophesying God's word. और परमेश्वर के वचन को घोषित करना भी भविष्यवाणी के दायरे में आता है। I mean, that is another big subject. ये एक दूसरा बड़ा विषय है। So, utterance word, inspiration, प्रेरणा के द्वारा बोले गए वचन, घोषित किए गए वचन, prophecy, उसके अंतर्गत आते हैं भविष्यवाणी diversities of tongues. और भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलना। This is not the one of the gift of the Spirit. और ये आत्मा का दान पाते समय जो अन्य भाषा बोले वो नहीं, This is on the gifts of the Holy Spirit. परंतु ये आत्मा के द्वारा दिया गए वरदानों में एक है भिन्न भिन्न भाषा बोलना। Okay, we will just touch on that. हम इस बात को देख An लेंगे। interpretation of tongues. और है भाषाओं का अनुवाद। This interpretation is for the people, और the ये church. अनुवाद कलीसिया के लिए और लोगों के लिए है। It might be a type of prophecy. ये एक किस्म का संभव है, ये भविष्यवाणी हो। One man speaks in tongues, एक आदमी किसी एक भाषा में वो बोलता है, unknown tongues, उसके लिए वो अन्य भाषा है। and the other man also doesn't understand him, दूसरा व्यक्ति भी जो आत्मा में है वो उस भाषा को वो भी नहीं जानता, but he has the interpretation in the language people understand. लेकिन उसके पास में वहां बैठे सुनने वाले लोगों की भाषा में उसका अनुवाद है। So he speaks out, वो अनुवाद करने लगता है and it brings a blessing to the church. और कलीसिया के लिए वो आशीष बन जाती है। In this gift, no one man is getting glory. और इन वरदानों से किसी मनुष्य को कोई महिमा नहीं मिलती। Amen. आमेन। Okay. ठीक है। Third one. और तीसरा जो वर्ग है, First one was, पहला वर्ग था what was it? First one was gifts of revelation. पहला वर्ग था प्रकाशन के वरदान, 3 are there. उसके अंतर्गत 3 हमने देखा था। Gifts of inspiration. और उसके बाद दूसरा वर्ग है ऐसे वरदान जो प्रेरणा से जो बोले जाने वाले वरदान, 3 are there underneath. उसके अंतर्गत भी 3 वरदान है। And lastly, और जो तीसरा और आखिरी वर्ग है gifts of power. वो है सामर्थ के वरदान। Everybody wants this one.
ये वर्ग को सब चाहते हैं। gift of faith. विश्वास का वरदान, In this, three things come in: और इसके अंतर्गत तीन चीज आती है: faith, विश्वास, healings, चंगाई miracles. और चमत्कार। Okay? मैन, So, this is also ये भी है for the work of the ministry, सेवा के कार्य के लिए दिया गया वरदान है, to become a blessing to the church. ताकि ये वरदान कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो जाए। Amen. आमेन। Have faith in God. परमेश्वर पर भरोसा रखें। Now, this is not that faith cometh by hearing, hearing by the word of God. That is good. और ये वो विश्वास की बात वरदान नहीं है जो विश्वास सुनने के द्वारा परमेश्वर के वचन के सुनने से आता, वो वाला विश्वास नहीं। Supernaturally, परंतु ये अलौकिक विश्वास का वरदान है। you can do many great things. इस विश्वास से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। And then second one is और दूसरा उसमें है gifts of healings. चंगाइयों का वरदान। I mean, some people specialize in certain kinds of sickness and disease also. आप पाएंगे कुछ लोग किसी खास किस्म की बीमारी, उनकी सेवकाई में ज्यादा वो लोग चंगे होते हैं। Others also get healed. दूसरे भी बीमारी के लोग चंगे But होते हैं। when some wheelchairs are the ones the people get healed. लेकिन किसी के सेवकाई में व्हील चेयर में पड़े हुए लोग चंगे होने का बहुत घटना In होती है। some the deaf are the one who start off the और कहीं कहीं ignited. किसी व्यक्ति की सेवकाई में जो बहरे हैं वो लोग सुनने लग जाते हैं। Amen. आमेन। One thing is there. एक बात वहां है, Gifts are used. The Lord is our healer. ये चंगाई का वरदान हमारे पास है, लेकिन चंगा प्रभु करता है। Amen. आमेन। Many people don't believe in healings today. बहुत से लोग आज ऐसे भी हैं जो चंगाई के ऊपर विश्वास नहीं करते। They're sitting in their cabin वे अपने कैबिन में बैठे हैं and they're saying that it is over. और वो ये रोज गाते हैं कि सब खत्म हो गया। At the time when the apostles, it ended with them. प्रेरित आकर चले गए, उनके साथ सब The चमत्कार Holy खत्म हो Ghost गए। went with the apostles also. पवित्र आत्मा भी चले गई प्रेरित लोग के साथ। Wonderful. अद्भुत विचार है। Huh? That's why they are so miserable. इसलिए काफी दुर्दशा उनकी है, Because क्योंकि if a river is not flowing, यदि नदी का जल बह नहीं रहा है then it's going to get stagnated. तो एक ही जगह वो फंस जाएगा। Amen. आमेन। If the Spirit of God is interested in saving souls, यदि परमेश्वर की आत्मा का ही इच्छा है आत्माओं को बचाना, He is not stopped only at salvation. तो वो केवल उद्धार देकर रुकता नहीं है, He goes on. वो तो बहता रहता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Today signs and wonders still take place. आज के समय भी बड़े चंगाई और बड़े चिन्ह आज हो रहे You हैं, can sit down and have a seminar that it's not happening और आप बैठकर बड़ा सेमिनार भी कर सकते हैं कि चमत्कार बंद हो गए हैं। and be comfortable where you are. और आप जो भी विचारधारा रखते हैं उसमें अपने आप को काफी आराम भी महसूस कर रहे होंगे। You come to this part of the land. लेकिन आप हमारे भारत देश के इस भागों में आइए, You will find signs and wonders are taking place every day. आप पाएंगे कि हर दिन हर रोज परमेश्वर चमत्कार और सामर्थ के काम कर रहा है। People are believing on the Lord Jesus Christ. लोग प्रभु यीशु मसीह पर उसके द्वारा विश्वास कर रहे हैं। Hallelujah. आमेन। Snake bites. किसी को सांप काट देता है, Dead are being raised. कहीं पर परमेश्वर मुर्दों को जिला रहा है। Amen. By ordinary village folk. सामान्य गांव के प्रभु के सेवकों के द्वारा They are having more revelations than we are having. परमेश्वर उनको ज्यादा प्रकाशन दे रहा हमसे बढ़कर। When dreams and visions. स्वप्न और दर्शन के द्वारा In the last days I will pour my spirit. परमेश्वर बोलता अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। Then when are the last days? फिर ये अंत के दिन कब हैं? It ended up with apostles. क्या प्रेरितों के जाने के साथ अंतिम दिन भी हो गया? Forget that. उस बात को भूल जाइए। Amen. आमेन। Miracles are happening. चमत्कार तो प्रभु कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। One man in our church, एक व्यक्ति हमारे कलीसिया में, he came just visiting because he had cancer. वो आए थे क्योंकि उनको कैंसर था, And one of our persons had brought him, a believer. और हमारे एक विश्वासी भाई उनको लेकर आए थे And he prayed for him. He went back. There was no cancer. It disappeared from his और body. उनके लिए प्रार्थना किया गया। वापस जांच कराने गए, कैंसर पूरी तरह से मिट चुका था। What do you have to say about that? आप क्या बोलेंगे इसके बारे में?
No. We can have another seminar. You go and have one more. नहीं, शायद एक और दूसरा सेमिनार हम करेंगे And sit there and discuss it for one more year. एक और साल बैठकर आप उस पर चर्चा करिए कि चमत्कार नहीं होता। But remember, लेकिन याद when रखिए, you are having your seminar, miracles are still happening. आप चाहे कितने भी सेमिनार ऐसे कर लें, परमेश्वर वहां लोगों को चंगा कर रहा है। Amen. आमेन। And then the third one is और तीसरा जो वर्ग हम देख रहे हैं, miracles. उसमें तीसरा वरदान है सामर्थ के काम। Amen. आमेन। Fire of the Lord came and fell upon them. परमेश्वर की आत्मा की आग लोगों पर उतर आई। Amen. आमेन। Things are happening. ऐसी सी घटनाएं हो रही, Demons are being cast out. दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकाले जा रहे हैं। Amen. आमेन। One time one lady was brought to our church. एक समय एक बहन को कलीसिया लाया गया She was possessed with evil spirits. और दुष्टात्मा उनको सता रहा था। When she came in, लेकिन और जब वो अंदर आई, she said, "There is all fire all around here. वो कहती कि यहाँ चारों तरफ आग ही आग है, Take me out from this place." मुझको यहाँ से निकालो। Amen. This is not, nobody taught her that. उसको किसी ने सिखाया नहीं। वो The evil spirits began to speak. दुष्टात्मा अंदर से बोलने लगी। You know, sometimes evil spirits speak the truth also. आप जानते, कई बार दुष्टात्माओं ने सच बोल दिया है। What we have to do with thee, thou holy Son of God? उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हे परमेश्वर के पवित्र जन, हमें तुझसे क्या काम। Some people don't believe he's the Son of God. Devils are saying he's Son of God. ओ, कुछ लोग आज विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन दुष्टात्मा भी वहां पर अंगीकार कर रही है He's the Son of God. कि वो परमेश्वर का पुत्र है। What have we to do with you? और Don't send us in hell. हमें तुझसे क्या काम, हमें उस कुंड में मत भेजो। निवेदन करने लगे यीशु से। Amen. आमेन। You know what happened? आप जानते क्या हुआ? We asked them, who told you to come here to this church? हमने उस दुष्टात्मा से पूछा, No, the उन people- लोगों से पूछा, माफ करें, कि आपको किसने यहाँ पर आने के लिए बोला? They said, this same woman was telling, don't take me there. ये स्त्री जिसको दुष्टात्मा था यही बोलती थी कि मेरे को कहीं भी ले जाओ, लेकिन वहां मत ले जाना। So we thought to bring her here only. तो हमने सोचा इसको यहीं लेकर जाते हैं, The demon came out. लेकिन वो महिला दुष्टात्मा निकल गया। Hallelujah. हालेलुया। What do you have to say that? और वो आजाद हो गई। आप क्या कहेंगे? There are some violent ones also. कुछ बहुत हिंसात्मक किस्म के भी हैं। They will stand their ground for some time. वो कुछ समय तक निकलना नहीं चाहते They might हैं even pick up certain things to hit you. और वो मारने का भी प्रयास करते हैं। Amen. आमेन। That is the time. यही समय है प्रियो। The devil also knows. शैतान भी इस बात को जानता है। He said, devil said one time एक बार में शैतान ने ऐसे कहा, to the sons of Sceva, स्कीवा के बेटों से कहा, I know Jesus मैं तो यीशु को जानता हूँ and I know Paul. और मैं पौलुस को भी जानता हूँ जिसका नाम तुम ले रहे हो, Who are you? लेकिन तुम लोग कौन हो? Amen. आमेन। So miracle days are not over. सामर्थ के काम के दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। One verse and I'll close. एक वचन के साथ हम बंद करेंगे। Hebrews 2nd chapter. इब्रानियों उसका 2 अध्याय। It says in verse 4, 4 आयत में लिखा है, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to his own will. और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Amen. Amen. Continuous tense. वो निरंतरता में वो कह रहा है, God also bearing them witness, परमेश्वर भी इसकी गवाही देता रहा, both with signs and wonders, चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा, with diverse miracles, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा, gifts of the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा according to his own will. इसकी गवाही देता रहा अपनी इच्छा के अनुसार। Hallelujah. हालेलुया।
If we had time, I would told you about one boy who was in our church. हमारे चर्च में He's a cripple. एक लड़का था और वो उसको कुछ अपंगता थी. He's still a cripple. वो अभी भी वो उसमें वो कमजोरी है. But God uses him. लेकिन परमेश्वर उस भाई को इस्तेमाल कर रहा है. Cancers disappear. और उनकी सेवकाई में कैंसर जैसे बीमार लोग चंगे हो रहे हैं. They brought one woman with breast which was eaten up by worms. A village woman, stinking. बहन को लेकर लोग वहां पर आए जिनके शरीर में कैंसर और कीड़े लगे जैसे दुर्गंध आ रही थी. This young boy prayed for her. और इस जवान लड़के ने उस बहन के लिए प्रार्थना की. After a week or एक two, सप्ताह बीत जाने के बाद brought back. That woman came back, वो औरत वापस लौट कर जब आई, totally healed by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ ने उस बहन को पूरी तौर से चंगा कर दिया था. Not a scar, not a mark. कोई निशान, Everything restored कोई back. दाग नहीं. परमेश्वर ने इसको पूरी तौर से भला और चंगा कर दिया. God also working with them. परमेश्वर भी उनके Hallelujah. संग संग काम करता रहा. Hallelujah. Hallelujah. With signs and wonders. चिन्ह और सामर्थ के कामों के द्वारा This is something unique. This miracle working power was unique. ये सामर्थ के काम जो है ये कुछ अलौकिक है प्रियों. So receive it. इसलिए इस सामर्थ को ग्रहण करें, Be healed. चंगाई प्राप्त करें In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Rise and be healed. उठो और चंगे हो जाओ In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah. हालेलुया. Something good will happen. कुछ भला आपके लिए होगा. Jesus paid it all यीशु मसीह ने सारी की पूरी कीमत चुका दी है on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पे. And we are just servants. और हम केवल उसके सेवक हैं. We only release the word. हम केवल वचन को आपको कहते हैं. He does the job. परमेश्वर अपने काम को करता है प्रियों. He's standing by your side. आपके बगल में खड़ा है. Amen. आमेन. Just the touch केवल उसका एक स्पर्श is enough. काफी है. Hallelujah. हालेलुया. Praise His name. Thank you, प्रभु Lord. के Shall we नाम pray? को महिमा मिले. Jesus' name. We pray, Father, this day. पिताजी आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं. What is written is written. तेरे वचन में जो लिखा है वो लिख दिया गया है. Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएंगे, Your word will not pass away. तेरा वचन नहीं टलेगा. And you sent your word और तूने अपने वचन को भेजा and healed them. और उनको चंगा कर दिया. That person there वो व्यक्ति जो वहां है, in pain जो दर्द में है and distress. और हताशा में है, Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Receive your healing. अपने लिए चंगाई को ग्रहण कर लो. Receive that healing from Jesus, your Savior. तेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से अपनी चंगाई को ले ले. He sent His word and healed the disease. उसने अपने वचन को भेजा है चंगाई के लिए. I am the God who healeth thee. कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा चंगा करने हारा हूं. Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य Forget कह. not His benefits, उसके किसी उपकार को ना भूल. who healeth all thy diseases. वो जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता Kumbara है. sikariatine namahu kababa mama. Jesus ने Be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से. Check on yourself. अपने आप को जांच लो. Allow the Spirit to move. पवित्र आत्मा को अपने अंदर भरपूरी Say से to काम Jesus, yes, I am ready. यीशु से कहें हाँ प्रभु मैं तैयार हूं. Bless your name. Bless your name. Thank you, God. In Jesus' name, I command you.
Fill that place with your glory. प्रभु स्थान को अपनी महिमा से भर दे। Angels are everywhere. Angels everywhere. स्वर्गदूत यहाँ पर आ जाएं, हर एक जगह में आ जाएं। The darkness to lift up. अंधकार वहां से हट जाए। Light of God shine forth. परमेश्वर का प्रकाश चमके। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless them, O God. प्रभु तूने आशीष देना। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Without him, I can do nothing. Without him, I'll surely fail. Without him, life will be drifting like a ship without a sail. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away, oh Jesus, my Jesus. Without him, how lost I will be. Without him, I can do nothing. Without him, I'll surely fail. Without him, life will be drifting like a ship without a sail. Oh Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away, oh Jesus, my Jesus. Without him, how lost I will be. Thank you, Lord. Amen.